अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MRS न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आज हुबली शहर के कारवार रोड में बीजापुर हॉस्पिटल में मिलादुन नबी के मौके पर जमात अहले सुन्नत कर्नाटका ब्रांच हुबली एंड डॉक्टर बीजापुर हॉस्पिटल की जानिब से आज ब्लड डोनेट कैंप रखा गया। इस मौके पर बीजापुर हॉस्पिटल टीम और जमात अहले सुन्नत कर्नाटका ब्रांच के सभी मेंबरान इस मौके पर मौजूद थे और इस मौके पर मौलाना नियाज आलम साहब, मौलाना अब्दुल हकीम साहब और हजरत सैयद ताजुद्दीन पीरा कादरी साहब, सिराज अहमद साहब, अयूब सुंडके साहब, सिराज अहमद कुर्ची साहब और इसी तरह कारपोरेटर्स इमरान अलीगार साहब और इरफान नालतवाड़, इसी तरह और अजीम उसान शख्सियतें इस मौके पर मौजूद थीं। आइए देखेंगे उसकी एक नज़र। सही हो, बिल्कुल गुड वर्क। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, इधर ही लो, चलिए इधर से थोड़ा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर जमात अहले सुन्नत कर्नाटका ब्रांच हुबली और डॉक्टर बीजापुर हॉस्पिटल की जानिब से ये 9वां सालाना ब्लड डोनेशन कैंप आज मुनक्किद हुआ है बड़ी कामयाबी के साथ, जिसमें शहर हुबली के मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान और बहुत सारे आशिकान रसूल नौजवान बिला लिहाज मजहब शिरकत किए और अपना खून डोनेट किया, अपना खून का अतिया पेश किया इस नीयत के साथ कि हमारा खून किसी की शिफा के लिए, किसी की जान बचाने के लिए काम आए। और साथ ही साथ हम खून देते वक्त हुजूर की मोहब्बत में अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये खून जिसके लिए भी काम आए अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए और इस काम से अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। साथ ही साथ सारे आलम इस्लाम को मैं जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह हुजूर के सदक़े में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम फरमाए। ये जमात अहले सुन्नत कर्नाटका ब्रांच हुबली की जानिब से हुआ है। हर साल होता है? हर साल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 9वां साल यही होता है। मतलब अभी तक नहीं हुआ है, आगे इंशाल्लाह जैसे हालात होंगे करेंगे। इमसाल किम्स में भी हुआ है, किम्स में भी हुआ है इंशाल्लाह। ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಮ್ಮ ನಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಗಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರಾರು ಜನ ಎಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಜನ ಸಮೇತ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೀ ಆ ದುಡಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 100% ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಆಗಿ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದು ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತೀರಾ ಸರ್? 100% ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ ಅವರು ಸರ್ಜನ್ ಇದರದ್ದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 100% ಅವ್ರು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ
ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. हमारे ಕರ್ನಾಟಕ ब्रांच में ಬ್ರಾಂಚ್ ಹುಬ್ಳಿಲಿಂತ್ರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಲ್ಮಾ ಅವರ ಕಡೆಲಿಂತ್ರ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡೆಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಜನರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಲ್ಲ 100% ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಮಾತದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಬರುವಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿಜಾಪುರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸರ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सर अभी जो कैंप हुआ, ये जो तंजीम का कैंप भी हो रहा है, इसके बारे में आप क्या? ये कैंप इस साल जश्न ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर रखा गया है। इसको हम 2016 से शुरू किए हैं। होता ये था कि ब्लड देने के वक्त में लोग पूछते थे कि हम दिए तो कमज़ोर होते, वो होते, हमारे उलमा नहीं बोलते, नकोकर बोलते करके। तो हम लोग फतवा मंगा के मौलाना नियाज़ आलम के साथ ये जो है 2016 में 30 उलमा ने इसको ब्लड डोनेशन किया। तब से मुसलसल हर साल हम लोग ये डोनेशन कर रहे हैं। इससे ये तो है कि एक देने का जो जोश और खरोश रहता है, और उसका जो दे के जो खुशी मिलती है खून दे के, वो अलग ही रहती। तो इसके फ़ायदे भी हैं, नहीं करके नहीं, लेकिन देना चाहिए। दे के आप इसको खुशी हासिल करें। ये डोनेट करने से इंसान को फायदा क्या है? ब्लड डोनेशन करने से ऐसा है कि आरबीसी होता है मेन ब्लड का जो ये एलिमेंट रहता है वो आरबीसी की ये जो है लाइफ लाइन, उसकी लाइफ जो है 120 डेज रहती है। तो वो 120 डेज में मर जाता हूँ तो उसकी चल जाता। तो एवरी 3 मंथ्स अगर हम देते रहे तो नया खून आते रहता। तो और ये नया खून जो है ना, ये स्टिमुलेट होता, और कम हुआ तो फिर स्टिमुलेट करता, फिर ज़्यादा होता। तो इसकी वजह से देने से एक फ़ायदा ये। और दूसरी चीज़ें, ये ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर में खून बहुत उछलते रहता, जो बीपी ज़्यादा रहती, तो उससे ये कम, देने से भी कम होता। और दूसरी चीज़ें, कैंसर भी के जो इंसिडेंस है वो भी कम होता, ये है। और देने से बहुत फ़ायदे हैं। एवरी 3 मंथ्स को दे सकते हैं। आंखों को कुछ इफेक्ट होगा? नो, कहाँ भी नहीं होता, आँखों का नहीं होता, लीवर का नहीं होता, दिल के हार्ट को भी नहीं होता। यंग रहे तो क्या है उसका फ़ायदा। हाँ, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो हो गया ना, हार्ट पे भी इफेक्ट कम होता है, दिमाग पे भी कम होता है, किडनी पे भी इफेक्ट कम होता है। तो ब्लड प्रेशर का इफेक्ट कम होता है, उससे ये फ़ायदा। देने से फ़ायदा वो बड़ा फ़ायदा है। दे को जो आपको खुशी मिलती वो अलग है, एक जान बचती। अब आजकल क्या करते हैं, एक खून को 3 हिस्सों में बांटते हैं, 3 हिस्से निकालते हैं, एक प्लेटलेट, एक FFP करके, और एक PRBC RBC होता निकालते हैं। निकाल के 3 मरीजों को फ़ायदा दे सकते हैं। अगर खून बहुत जा रहा तो होल ब्लड ही दे सकते हैं। ऐसा हुआ है कि हम लोग कितने बार ऑपरेट करते रहे। तो मैं एक मौके का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे, ब्लीडिंग हो रही थी उसको। तो हमारे एनेस्थेसिस्ट कुछ तो करो बोल के, तो मैं आर्टरी को लाइगेट किया, उसके बाद खून भी इमीडिएटली आया। हम लोग 5 या 10 मिनट में उसको पूरा इन्फ्यूज़ किया, एक ही ब्लड, एक ही। तो उसकी जान बच गई। उसके बाद हम लोग 10 यूनिट दिए, वो अलग बात है, लेकिन एक ही जो फर्स्ट में आया नहीं, वो उसको इफेक्ट किया और उसकी जान बची। ऐसे ही हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हमें नेगेटिव ब्लड है। रात में एक बार रात के 2 बजे ये भी नेगेटिव, ये भी मिलना मुश्किल है, उसके ऊपर नेगेटिव, तो वो भी मिलना मुश्किल। तो उसमें रात में 3 बॉटल अरेंज करके कैसा कि दिए। हमारे गली में चेक ये
ये भी नेगेटिव था, उसको ले जाके ब्लीड करा के दिए पहला उसका एक्चुअली देखे मैं, अब वो जाति क्या कि पेशेंट वैसा लगा, इमीडिएट लगा, उस वजह से बची। तो ये कभी कभी जचकी के मौके पे पीपीएच बोलते हैं, पीपीएच के वक्त में ऐसा ब्लड जाता, नल खोले तो कैसा पानी जाता नहीं वैसा जाता। अब तुम्हें कैसा रखते हैं उसको, वो उसके अंदर के कुछ जो ये है ना ब्लीडिंग एलिमेंट्स है ना वो कम होते हैं। कोगुलेशन जो है करना है, कोगुलेशन जो खून थिक होता है यानी मुंजमद होता है, वो सब वो जाग छोड़ते हैं। वैसे मौके पे से क्या भी डाले तो भी कम से डालते थे ना, जब तक खून सही नहीं होता, वो माँ के वजह बच्चे की वजह से होता हो, तो वो बच्चा निकल गया, उसके असरात जो है एक 24 घंटे तक रहता है कभी कभी। तो वो असरात जाने तक उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना, कभी कभी हुआ हमारे पास 20 बॉटल दिए, 18 बॉटल दिए हैं, तो उसको आने तक देते थे ना, उसके बाद ठीक हो जाती तो तब ठीक है। सब अभी ये जो तंजीम ये ब्लड डोनेट का कैंप रखा हुआ है, अब ये देने के बाद में उनको आप सर्टिफिकेट देंगे, वो सर्टिफिकेट आप यूज कैसा करेंगे सर? वो सर्टिफिकेट के साथ वो लोग जहाँ पे दे रहे हैं हम लोग वहाँ जाके, अब वो क्या होता है कि एक ब्लड दिए तो एक ब्लड दो बोलते हैं, अब ब्लड ले रहे तो एक डोनर देना उनको, तो डोनर की बजाय हम लोग सर्टिफिकेट दिखाए तो डोनर देने की जरूरत नहीं, एक चीज़ ये फायदा। हाँ, और उनको प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उन्होंने डोनेट किए हमारे पास, इसलिए प्रेफरेंस देते हैं। ये है ना लाइफलाइन में और केएमसी में दोनों जगह फायदा होता है हमारे पेशेंट्स को जो दिए हैं आज डोनेट के। तो हर जगह पे मतलब एक बेनिफिट है। बेनिफिट डेफिनेटली बेनिफिट है, और आपका बेनिफिट है। हमारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, एक डॉक्टर हैं गदक के प्यार अली नूरानी करके, 86 मरतबा दिए, 86 मरतबा दिए लास्ट ईयर, उनको हमें फेलिसिटेट किए 86 मरतबा। अब बोल सकते अब क्या उन्होंने अच्छे हट्टे कट्टे हैं, उनके पर्सनल देखे तो मालूम पड़ता आपको। अभी उन्होंने 70 लगते हैं, हाँ 40 साल का, ही 76 नाउ। जो कैंप रखा है सर संजीव वालों ने, अगली बार और रखना चाह रहे हैं? नहीं, हर साल रखेंगे, हर साल रखेंगे। ये फाउंडेशन डाले हैं, अब हर साल करने का चीज को कुछ भी हो इंशाल्लाह जनता, हाँ वैसा करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे मौलाना हैं, ये सब लोग हैं हमारे यहाँ, मौलाना अब्दुल हकीम है, प्रेसिडेंट है लोकल ब्रांच के, मौलाना हैं, ये सब ये पिलर से नो हर साल देते। मौलाना परसों दिए है इसलिए आज नहीं दिए, लेकिन देते हैं। अभी कुछ सरकार के तौर पर अभी हुडीदाड़ महानगर पालिका के सदस्य है, सरकार के तौर पे भी कुछ ना कुछ हॉस्पिटल के लिए करेंगे बोल के करें, उनके लिए आप? नहीं वैसे क्या नहीं, हमारा फरीजा है ये, हमने करना करके है करते। ये एक हमारा मकसद दे नहीं लोगों को, हमारे लोग पहले इसके बारे में जानते नहीं थे, इल्म नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, तो इसको अवेयर करने के लिए अब कितने की तंजीमें हैं हमारे, जिसमें है मुजीब है, उनकी एक तंजीम है, ब्लड डोनर्स की एक लिस्ट है, वो डोनेट करते। पहले हम लोग डोनेट कराने के लिए बहुत सुबह से शाम तक पीछे लगना पड़ता था। अब क्या नहीं, ये नेगेटिव ब्लड भी है तो अब लिस्ट है उनके पास, तो उनको फ़ोन करें तो बस उनको बुला लेके कर देते हैं। कितने नेगेटिव पेशेंट्स आते हैं, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, सो उनकी लिस्ट है हमारे पास, उनको बुला लेते हैं हम लोग। अभी टोटली कितने लोगों को आज मेरे ख्याल से 80 तो होंगे, अभी चला है, हाँ रनिंग पे। हम 1:30 बजे बंद करते हैं इंशाल्लाह, 100 तक सेंचुरी मार देगा। 100 करते, कितने होते करते हैं। मकसद देने का है, वो जज्बा आना चाहिए, बस मैं देना कर को देने वाले को देख को फिर अगले वाला देता। हाँ, तो इसलिए हम लोग ये करते हैं। और मौलाना के इसलिए लेकर आते हैं कि मौलाना हर साल देते हैं, उनको बलि का बकरा बनाते हैं हमें क्योंकि मौलाना शुरू किए तो उनको करने लाते हैं पहला, हाँ वो देते और दिखा, ये इसके लिए नहीं है कि मैं दे रहा हूँ करके, दिखाने के लिए कम से कम के हमें एटलीस्ट बहाना नहीं बनाए। उस दिन देने आता नहीं, उन्हें बोलता हमारे मौलाना नको को बोलता जी करके, हमें दिखा छोड़ता है, इनका फोटो दी देखो, क्या बहाना नहीं रहता हूँ। अब वैसे बहाने बहुत कम है। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहली बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस फाउंडेशन जो शुरुआत करे, ये ब्लड का जो हमें हर चीज़ में सोशल वर्क करते रहते हैं, ये ब्लड क्या चीज़ है हम ना बेहतर इसके बारे में ये है कि वे तो कौन सी भी पेशेंट का जो डिलीवरी होते हैं तो उसे ब्लड की बहुत ज़रूरत रहती है। एक बार ऐसा हुआ था रात का, मैं साहब को फ़ोन लगाया, साहब ऐसा ब्लड का अरेंज नहीं हो रहा बोले में, तब ये नाम का कमेटी का नाम लेकर हम ना एक ले पास सर्टिफिकेट मिली, उसकी एक ले की जान बची है, ये मैं इसका प्रूफ है सब।
ये केमशी में ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं ने ये तंजीम कर इंशाल्लाह हर गली गली में एक ब्लेड का कैंप बनना जरूरी है हमारे, क्योंकि तो हमारे माँ बहना को एक बार ऐसा ब्लेड की जरूरत पड़ती है, हम ढूंढ लेके फिरते हैं सब। तो एक ऐसे हर मोहल्ले में एक पहचान बने ने, ये ग्रुप के पास ऐसे ब्लेड मिलता बोले तो कई लोगों की जान बच सकती है, कि लोग ब्लेड को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी बात को मैं कहते हुए हमारे जो तंजीम का है शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात तो हमारे बीजापुरी हॉस्पिटल साहब का, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे न्याज़ मौलाना जो इतना बड़ा काम को अंजाम दे रहे, इनका सबसे पहली बात शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।